So we'll do the ISLM model today, or the ISLM analysis, which is being given by J.R. Hicks and Elvin Henson, right? So why they have given this or produced this ISLM model, right? So before what they have did is ISLM model जो है इसमें इन्होंने हिक्स एंड हेंसन ने जो क्लासिकल्स की और कीन्स की जो इंटरेस्ट की थियोरी थी, राइट, उसको सिंथेसाइज किया है, राइट, और दोनों को इंटीग्रेट किया है टू प्रोड्यूस दिस वन मॉडल ISLM, राइट. क्यों ये किया है? बिकॉज जो क्लासिकल्स की थियोरी थी और कीन्स की थियोरी थी, दे हैव बीन कंसीडर्ड एज इनडिटर्मिनेट. इन व्हाट सेंस? क्योंकि क्लासिकल्स की अगर हम लोग थियोरी देखें ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन, दे हैव सेड कि द interest will be determined at a point where saving and investment curve will intersect each other, right? And both saving and investment are real variables, right? So इनके according monetary जो factors हैं उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है. The rate of interest is purely determined in a real market, right? So monetary factors को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया क्लासिकल्स ने, पहली बात. दूसरी बात, कीन्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस थियोरी दैट दिस इज इनडिटर्मिनेट. व्हाई? बिकॉज सेविंग जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. इट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, कि इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा, इनकम कम है तो सेविंग कम. एंड फर्दर लेवल ऑफ इनकम विल बी डिटर्मिन्ड बाय द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, then the multiplier effect, then the change in income, that will show you how much saving will be done, right? So us investment, again that investment factor is dependent upon the rate of interest, right? So that is the reason. So यहाँ पे एक indeterminacy classicals की theory में दिखी, तो कीन्स ने अपनी liquidity preference theory दी थी for the interest rate determination, right? But Keynesian theory is also being considered as indeterminate. Later the economists, the economists have challenged both these theories for the determination of rate of interest की दोनों ही indeterminate है. In what sense? कीन्स के हम लोग देखते हैं, कीन्स का liquidity preference theory में जो liquidity है that is dependent upon the level of income and rate of interest, है ना? L1 plus L2 आपको याद होगा, है ना? L1 ब्रैकेट में R plus L1, L2 bracket में Y, right? That means these are the function of income and rate of interest. आपको तीन motives पता है, transaction and precautionary, जो कि income पे depend करते हैं, वो liquidity, और दूसरा जो कि speculative demand for money है, जो कि rate of interest पे determine होता है या depend करता है, right? So income and rate of interest दोनों ही factors यहाँ पे liquidity preference को determine करते हैं. So that means liquidity preference जानने के लिए हमें investment income जानना जरूरी है, level of income जानना जरूरी है, that is demand for money जो है income पे dependent है. अब income again investment पे depend है, और investment again rate of interest and marginal efficiency of capital पे dependent होता है. So before knowing determining the rate of interest, we must know the rate of interest before, right? So that is the reason Keynes का theory भी यहाँ पे indeterminate consider होता है, right? So ये दोनों ही जो arguments दिए थे, they have been challenged by the economists as indeterminate theory, right? And जो rate of interest है, ये देखा गया that has been observed that जो rate of interest है, it affects the level of income, that is GDP, है ना? And GDP has effect on the rate of interest via demand for money, right? So we'll see this ISLM कि कैसे इसने integrate किया both the real market and the monetary market को, right? So Hicks and Henson, they have integrated both the real variables and the monetary variables, है ना, जो कि saving and investment real variables हैं, and demand for money and supply of money, right? हाँ, कीन्स की ये भी एक शॉर्टकमिंग थी. कीन्स हैज इग्नोर्ड दी while determining rate of interest, उसने सिर्फ ये बोला कि ये एक प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है और रियल फैक्टर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. सो इट विल डिपेंड प्योरली ऑन दी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, राइट?
सो वहां पे रियल वेरिएबल्स को, जबकि दोनों ही मार्केट जो है इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ. सो दैट इज द रीजन हिक्स एंड हैज प्रोवाइडेड दिस थियोरी, right? And they have integrated these parameters of saving, investment and supply of money and demand for money through this analysis, right? And it is popularly known as the Hicks and Hayson synthesis, जिसको हम बोलते हैं. Then है क्या ये ISLM अब, है ना? So जो IS है, it draws an equality between the investment and saving corresponding to the equilibrium in the goods market. Goods market की equilibrium में ये equality between investment and saving को दर्शाता है IS curve, right? And what is LM curve? ये equality between demand for money and supply of money in the monetary market, right? इसको दर्शाता है LM का curve जो है, right? So IS curve पे हम लोग पहले आते हैं कि what is IS curve and how it is being determined or how it is derived, right? So what is IS curve? It is the locus of different combinations of level of income and rate of interest where the desired savings are equal to desired investment. तो जो IS curve है, it is the locus of different combinations of the rate of interest, है ना? ब्याज दर और आय स्तर दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता हुआ एक कर्व होता है जहां पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होंगे, राइट? सो दैट बेसिकली ये जो है प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, जहां पे इट represents all combinations of income and rate of interest, जहां पे demand for goods and services is equal to supply of goods and services, right? So equilibrium in the product market को ये दर्शाता है एक तरह से, right? So अगर हम लोग IS कर्व की डेरिवेशन पे आए कि कैसे ये बताता है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग इसको देखें, सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस जब मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी, राइट? सो आई डायरेक्टली गो टू दिस डायग्राम. सो यहाँ पे आप देखिए एट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है. वी नो विद, क्योंकि हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लिया है ऑन द OX एक्सिस. एज वी नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का एक नेगेटिव रिलेशन रहता है, राइट? सो एट द गिवन इन्वेस्टमेंट कर्व, है ना, एंड प्रोवाइडेड द डिफरेंट सेविंग कर्व्स, फैमिली ऑफ सेविंग कर्व्स एट डिफरेंट इनकम लेवल्स. हम देख रहे हैं अब सेविंग का इनकम के साथ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, राइट? और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन है. सो दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली स्लोपिंग, पहली बार. दूसरा, इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है ये राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा है सेविंग का कर्व. सो बिफोर जब इनकम y0 थी, मतलब कम थी, तो सेविंग का कर्व ये, राइट? एंड विद द इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिटरमिन हुआ, राइट? R0. As the level of income increases despite of no change in the rate of interest, तो ये ऑटोमेटिकली सेविंग का कर्व शिफ्ट करके नीचे चला गया, which shows that y1 at y1 level of income आपका सेविंग ऐसा होगा, सेविंग का कर्व, right? So again the next equilibrium is at point B, जो कि R1 rate of interest को डिटरमिन करता है, right? Then again income increases from y1 to y2, सेविंग का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होके ये आपका पॉइंट सी पे नया इंटरसेक्शन होता है, which draws an equilibrium rate of interest at R2, right? So joining these combinations A, B, C को हम लोग अगर यहाँ पे देखें, and यहाँ पे अगर हम लोग अब यहाँ पे हम लोग level of income लेंगे, क्योंकि IS is the locus of combinations of various rate of interest and level of income, right? Combinations of rate of interest and income को दिखाता है. So that is the reason हमने यहाँ पे level of income लिया है, यहाँ पे rate of interest लिया है. So यही rate of interest को आगे drag करते हैं हम लोग R0, R1, R2. So at higher rate of interest we can see, है ना, जो level of income है it is Y0 from this saving curve, है ना, Y0 level पे saving का curve यहाँ था और equilibrium यहाँ draw हो रहा था. So that is the reason, ठीक है? So जब Y1 हुई तो rate of interest was R1, ठीक है, and Y2 हुई income level, rate of interest was R2. So this is adjoining these points, ठीक है? So we draw a line, that line is known as the IS curve. ये तो है एक explanation. For your reference आपकी जो किताबों में इस तरह का दिया होगा, so that you don't get confused, तो मैं इसको भी यहाँ पे explain कर देती हूँ, right?
कि कैसे आईएस कर्व इसको डिटरमिन करते हैं हम लोग इसके द्वारा भी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व या एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व के द्वारा। जैसे कि हमें पता है इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक ऋणात्मक संबंध है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ऋणात्मक संबंध है, दैट इज व्हाई इट इज स्लोपिंग नेगेटिवली। तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम इन्वेस्टमेंट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज पूंजी सस्ती हो जाएगी, कैपिटल का जो प्राइस है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पूंजी सस्ती हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गया, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे लिया हुआ है, और यहाँ पे नेशनल इनकम हमने लिया हुआ है। अब एग्रीगेट डिमांड में दोनों चीजें आती हैं, क्या क्या, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट। और गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर भी हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ C+I ही दिखाया है जिसमें कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड है, मान लीजिए, राइट। सो एग्रीगेट सेविंग का कर्व हमें पता है 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक, है ना, कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, राइट। एंड दिस इज द कंजम्पशन और द एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसमें कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों आते हैं। आपको पता है ये कभी भी जीरो एक्सिस से शुरू नहीं होता, बिकॉज कंजम्पशन चाहे इनकम लेवल जीरो हो तब भी होती है, जहां पे कि नेगेटिव सेविंग को हम लोग नीचे दर्शाते हैं, वो पैनल आपको याद होगा डायग्राम, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड का कर्व OY एक्सिस से शुरू होता है। सो दोनों का इक्विलिब्रियम इस E पॉइंट पे Y0 लेवल पे इस तरह से होता है। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की वजह से निवेश बढ़ गया, राइट। सो कंजम्पशन उतना ही है, निवेश बढ़ गया C+I1, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का कर्व ऊपर को खिसक गया। नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस एट दिस E1, राइट। एंड जो मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम में इंक्रीज होता है दैट इज Y1, राइट। Now again investment rises further due to fall in the shortage in the rate of interest, or due to fall in the rate of interest, right? So rate of interest घटने पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा, right? उसकी वजह से क्या हुआ, और मल्टीप्लायर इफेक्ट के काम किया तो इनकम लेवल आपका Y2 तक बढ़ा। सो दिस इक्विलिब्रियम शोज कि इनकम हमारा Y2 हो गया, राइट। सो ये ही अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज्यादा थी, राइट, R0 थी सपोज ये, और इसके बाद ये R2 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वो R2 थी, राइट। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, दैट मीन्स R1 हुआ, फिर उसके बाद R0 हुआ, राइट। सो उसी को मैंने यहाँ पे लिया है R2, R1, R0, राइट। सो एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा इनकम लेवल Y0 थी, एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इनकम बढ़ के Y1 होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और घट के R0 हुई, आपका इनकम लेवल बढ़ के Y2। सो इन्हीं पॉइंट को ड्रैग करते हुए हम लोग A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग इसके निकालते हैं, और उसको हम लोग नीचे यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं विद द लेवल ऑफ इनकम। आपका ये IS कर्व इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ABC पॉइंट्स को जोड़ते हुए आपका IS कर्व डिराइव किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड, right? So coming to the slope of IS curve, why it is sloping downwards or negatively sloping, and slope किन चीजों पे इसका डिपेंड करता है आपका IS का curve, right? It depends upon the elasticity, right? Elasticity and the multiplier. Elasticity, what elasticity? That is responsiveness of aggregate expenditure or demand to change in rate of interest, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका रिस्पॉन्स अधिक है तो दिस विल बी द IS कर्व, IS1 या IS डैश जो कर्व आपको दिख रहा है। सो दिस विल बी द स्लोप, ये फ्लैट स्लोप होगा, दैट मीन्स थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट में फर्क आया, राइट। सो जिसकी वजह से इतना इनकम में फर्क आया। नाउ दिस शोज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो, राइट। सो पहला है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वो कैसा है, ज्यादा है, बहुत इलास्टिक है तो ऑब्वियसली फ्लैट स्लोप होगा, कम है तो कम स्लोप होगा, लेस इलास्टिक होगा स्लोप, राइट। मल्टीप्लायर कैसे करता है तय, इन्वेस्टमेंट के बाद, है ना। मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसी है, इफ मल्टीप्लायर की वैल्यू इज वेरी हाई, दैट मीन्स हाई MPC, है ना। MPC ज्यादा होती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू डिपेंड करता है कंजम्पशन पे, चेंज इन इनकम लीडिंग टू चेंज इन कंजम्पशन कितना है उस पे डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू।
तो वो जितना अधिक होगा आपका चेंज इन इनकम उतना ज्यादा आता है, राइट, है ना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बाद हमने मल्टीप्लायर का इफेक्ट पढ़ा है, राइट। सो जब इन्वेस्टमेंट हुआ उसकी वजह से इनकम में कितना परिवर्तन है, वो जितना अधिक होगा, मतलब कि मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होगी, तो आईएस का कर्व इस तरह का होगा, आईएस डैश जैसा। और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू इज लो, दैट मींस एमपीसी लो है, तो स्लोप ऑफ आईएस कर्व आपका ऐसा होगा। सो दोनों का इंपैक्ट हम लोग अगर देखें, इलास्टिसिटी एंड एमपीसी और द मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, तो ये स्लोप होता है ना, फ्लैट स्लोप होता है या मोर इलास्टिक स्लोप होता है। और अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू कम और इलास्टिसिटी कम है, एज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन दैट केस आईएस का कर्व स्लोप ऐसा रहता है, राइट। ऑलराइट, नाउ व्हाट कॉजेस द शिफ्ट इन द आईएस कर्व? आईएस कर्व शिफ्ट कब होता है, मतलब कि ये यहां से यहां को आगे को कैसे शिफ्ट होगा, या नीचे को कैसे, लेफ्ट साइड या राइटवर्ड शिफ्टिंग इसका कैसे होगा? इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो ये हो सकता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब अपनाती है गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर कम्स इन द फिस्कल पॉलिसी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में तो डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और टैक्सेस पे ये डिपेंड करता है। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है या टैक्सेस कम कर रही है, दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो इन दैट केस आईएस का कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, दैट मीन्स अपनी एक्सपेंडिचर घटाती है और टैक्स रेट्स बढ़ाती है, इन दैट केस आपका आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइट। सो दिस यहां देख रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, दैट मीन्स एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट। सो AD1 से AD2 हुआ, दैट मीन्स आईएस का कर्व आपका इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आईएस कर्व आपका शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम E1 टू यहाँ E2 तक, राइट, ड्यू टू दिस एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और the expansionary fiscal policy adopted by the government, right। आपका aggregate demand directly shift हो जाता है, which leads to more income at the same level of interest, right। So this is the case when IS curve shifts due to the autonomous investment done by the government, right, or the autonomous spending done by the government, right। So this is how it happens। और अगर contractionary होता तो ये left side को यहाँ पे इस तरह से shift होता, got it? Okay, coming to the LM curve now. LM curve, or it shows the money market equilibrium also. So LM curve is nothing but it shows all the combinations. Again, same thing. It is also the combination of various rate of interest and level of output or income where the money market is in equilibrium. IS curve में it shows the combinations of interest rate and income where the saving and investment are equal or demand for goods and services is equal to supply of goods and services. That means it shows the product market equilibrium. यहाँ पे ये दिखा रहा है money market equilibrium. That means where demand for money will be equal to supply of money. So here L denotes liquidity, M denotes money, right? Liquidity आपको पता है, liquidity preference मतलब कि demand for money, that is demand for money. M denotes supply of money, right? So LM जो है वो एक graphical representation curve है, right? Graphical representation है which shows the combination of real income and real interest rate, जहाँ पे money market will be in the equilibrium, right? All right. So this is demand for money. अगर हम लोग कीन्स के theory को recall करें, है ना, this is transaction demand for money, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि income बढ़ने पे ये demand for money बढ़ जाता था, right? So irrespective of rate of interest के income बढ़ने पे ये demand for money बढ़ता था for transaction and precautionary motives. Speculative motive में it depends upon the rate of interest and it has a negative slope because rate of interest ज़्यादा होता है तो demand for money कम रहती है. Rate of interest क्योंकि आप अगर आपके पास आपको ज़्यादा rate of interest मिल रहा है तो आप निवेश करना prefer करेंगे, ना कि अपने पास पैसे रखना prefer करेंगे speculation के लिए, right? तो डिमांड फॉर मनी कम होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप अपने पास ज्यादा रखना प्रेफर करेंगे, तो दिस मच गैप शोज द मोर डिमांड फॉर मनी, राइट, फॉर द स्पेक्युलेटिव पर्पस.
सो इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। लिक्विडिटी जो ट्रैप है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, राइट। सो टोटल डिमांड फॉर मनी अगर हम लोग देखें, सो दिस इज द मनी सप्लाई का कर्व। ये हम लोगों को बाद में जरूरत पड़ेगी जब हम इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी करेंगे, राइट। सो मनी सप्लाई क्योंकि एक एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, सो इन द शॉर्ट रन वी कंसीडर इट एज कांस्टेंट और फिक्स्ड गिवन, राइट। सो टोटल डिमांड फॉर मनी दैट इज प्रिकॉशनरी प्लस आपका ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी प्लस स्पेक्युलेटिव मोटिव, दोनों सबका जोड़ अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस इज द टोटल डिमांड फॉर मनी हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो ये इस कर्व का और इस कर्व का इंटरसेक्शन जहां होगा दैट इज इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिटरमिन्ड देयर। सो ये दिखा रहा है। ऑलराइट, नाउ वी नो दैट एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम डिमांड फॉर मनी विल आल्सो डिफरेंट, दैट मींस डिमांड फॉर मनी विल बी मोर। प्रिकॉशन और ट्रांजेक्शन के लिए आप ज्यादा पैसे रखेंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी तो इनकम कम होगी तो कम डिमांड फॉर मनी होगी। सो दैट इज द रीजन ये जो शिफ्टिंग हो रहा है डिमांड फॉर मनी में इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इनकम में बदलाव की वजह से ये लेफ्ट साइड या राइट साइड को शिफ्ट होता है, राइट। तो दिस शोज द चेंजेस इन इनकम दैट लीड्स टू चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी, राइट। हियर डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, राइट। सो इसके वजह से अगर सपोज पहले इक्विलिब्रियम था E1 पे, इनकम बढ़ने पे और Y2 से इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, तो नया इक्विलिब्रियम R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करता है। और अगर इनकम यहाँ से घट जाती है, Y1 से Y0 हो जाती है, इन दैट केस डिमांड फॉर मनी आपका लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। सो आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिटरमिन हुआ इस नए इक्विलिब्रियम पे इज R0, राइट। So this shows the demand for money and supply of money equilibrium or money market equilibrium इसको बोलते हैं, right? Now how we will derive the LM curve, right? So जब इनकम का लेवल बढ़ता है it leads to increase in demand for money, है ना? And increase in demand for money also leads to increase in rate of interest, that is obvious। जब आपका demand for money आप अपने पास होर्डिंग ज्यादा करके रखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, राइट। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, इनकम में बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, सो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। दैट इज द रीजन एलएम का कर्व भी पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, राइट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ने पे आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, डिमांड फॉर मनी बढ़ने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, राइट। सो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। सो दिस इज हाउ एलएम कर्व में आपको एक पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द कर्व विच I have explained earlier, ये वाला सॉरी ये वाला सेम यही कर्व हमने यहाँ पे बनाया है और इन्हीं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट यही यहाँ से लिया और ये Y0 लेवल यहाँ पे दिखा रहा है, देन R1 पे Y1 लेवल ऑफ इनकम, R2 पे Y2 लेवल ऑफ इनकम। सो joining these points we get the LM curve, right? All right. So slope of LM curve किस पे डिपेंड करता है, slope of LM curve डिपेंड करता है again on the sensitivity of demand for money to rate of interest, right? That is responsiveness of demand for money to rate of interest कैसा है, right? अब अगर demand for money is more sensitive to income and less sensitive to rate of interest, in that case आपका demand for money का या LM का curve ऐसा होगा, less elastic, right? अगर इट इज मोर सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेस सेंसिटिव टू लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि दोनों चीजों पे एलएम डिपेंड कर रहा है, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ। सो इन दैट केस आपका मोर सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पे आपका एलएम का कर्व इस तरह का फ्लैटर होगा, राइट, टुवर्ड्स द इनकम साइड होगा, इनकम वाले एक्सेस की तरफ को इसका बेंड होगा, राइट। सो दैट इज द स्लोप ऑफ एलएम कर्व। शिफ्टिंग कब होता है एलएम कर्व, LM कर्व की शिफ्टिंग होती है when there is a change in the money supply, when the monetary authority increases or decreases the money supply। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है irrespective of changes in this rate of interest, आपका ऑब्वियसली नया इक्विलिब्रियम इस बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर मनी कर्व वही है, राइट। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होने से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया है, राइट, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है दोनों में, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सो व्हाट हैपेंस, आपका ये जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट साइड, राइट। तो आपका
ये इस सेम लेवल ऑफ इनकम पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे घट जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। और अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई नहीं होता है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड को ये मनी सप्लाई कर्व यहाँ पे आता है, इन दैट केस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये नया इक्विलिब्रियम अगर सपोज यहाँ आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, है ना, एंड लेवल ऑफ इनकम विल बी लो हियर, राइट। सो ये आपका एलएम कर्व इस तरह से इधर को शिफ्ट होना था, फिर लेफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। Got it? So that is the shifting of LM curve, how it happens due to the changes in the money supply, right? So now coming to the equilibrium, simultaneous equilibrium in product market and money market, वो कहाँ होता है? It will be where LM curve and IS curve both intersect each other. So there will be the equilibrium of the product market का curve, investment and saving का curve, IS curve, right, which shows the goods market equilibrium, and LM curve, liquidity, that is demand for money, and M, supply of money, right. So it shows the money market equilibrium, दोनों का intersection जहाँ पे होगा, that shows the both integration of both markets is done here, and यहाँ पे आपका rate of interest and income determination इस तरह से इनके equilibrium intersection पे होता है, right. So ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, right, M and P. So this shows the real supply of money, real supply of money, and ये आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, because these values are considered as given values, मतलब constant है तो हम लोग यहाँ पे ये dash इसीलिए इनके ऊपर लगा है. So constant money supply, constant prices assume करके, right, it is equal to that is real money supply is equal to demand for money we know, L, liquidity, is the function of rate of interest and income, right. So this shows the money market equilibrium, right. So money को divide करते हैं P से, right. So it takes into account the inflation rate also, that is the reason ये real money supply को दिखा रहा है, got it. And ये आपका goods market equilibrium IS में it shows the consumption income is equal to consumption plus investment plus government expenditure, right. So again यहाँ पे ये y minus t आप सोच रहे होंगे क्या, ये taxes को दर्शा रहा है, taxes again considered as constant. So income is a tax देने के बाद जो बच गया वो income पे depend करेगा आपका consumption, और investment आपका rate of interest पे depend करता है, and government expenditure also be considered as given. So in that case ये दिखा रहा है national is income, that is aggregate supply is equal to aggregate demand. These things are aggregate demand components, right. So this shows the IS shows the good market equilibrium, right. So this is how the simultaneous equilibrium of the goods market and money market happens through the intersection of these two curves, right. इसके बाद I think हम लोग इसका shifting और equilibrium कैसे होगा, change, ये सारा हम लोग कल इसको पढ़ेंगे.